Hello everyone, good morning. Today we are going to start a new lesson in unit number 3 and the name of this lesson is Taro's Reward. It's a Japanese story and this is a story about a dutiful, thoughtful and loving son. He always works hard to fulfill his parents' wishes and desires. And one day, suddenly, he gets some unexpected help. So let's see which unexpected help Taro reward and Taro get. So let's start. Number 1, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long, he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. So this is a story about Taro, who was very poor and young woodcutter. He lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. पूरा दिन वो forest में जाता and wood cut करता, chop करता. Here what is the meaning of chop? Chop means cut into pieces. All day long Taro cut wood into pieces. Yet he worked hard. He earned very little money. पूरा दिन बहुत हार्ड वर्क करता, बहुत मेहनत करता, बट उसके बदले में उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं. Here you can see in this picture also Taro sat beside his mother and father. It made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो हमेशा चाहता था कि वो अपने मम्मा पापा की डिज़ायर्स फुलफ़िल करें, उनकी विशेस फुलफ़िल करें. तो जब वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था तो वो अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता था. वो बिकॉज ही वॉज वेरी थॉटफुल एंड ड्यूटीफुल सन, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. उसके पेरेंट्स को जो भी चाहिए था हमेशा वो कहीं से भी लाके देता था और उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स पूरी करता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. फिर एक बार क्या हुआ, शाम को टैरो जब अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हट की एक कॉर्नर में बैठा था, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. एक हवा आई और भारी हवा आने लगी. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. फिर उनकी जो हट थी, उनकी दीवारों में जो क्रैक पड़ी थी वहाँ से बहुत सी हवा आ रही थी. दैट्स वाई दे ऑल फेल्ट वेरी कोल्ड. बहुत ठंड लग रही थी उनको. सडनली टेरो's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. अचानक से टेरो के फादर ने क्या बोला? टेरो's father said, I wish I had a cup of sake. मुझे अभी एक कप साके का मिल जाता तो बहुत अच्छा होता. It would warm me and do my old heart good. अगर मैं साके पीता, अगर मुझे साके मिल जाता तो उससे मुझे वार्म फील होता, मुझे थोड़ी सी गर्मी फील होती एंड मेरा जो ओल्ड हार्ट है उसमें भी मेरे को अच्छा महसूस होता. Here you can read this word second. So what is the meaning of sake? Sake is a Japanese drink because this story is also taken from Japan, and sake is a Japanese drink, alcoholic drink, which was made from water and fermented rice. Although it's a alcoholic drink, it's neither beer nor wine. So जापान का एक ड्रिंक है साके. It's not pronounced as sake, it's pronounced as sake. हमें इसे साके प्रोनाउंस करना चाहिए. और टेरोस के फादर थे, उनको साके, उन्होंने क्या डिमांड किया? तो ही विश्ड दैट
if he had a cup of sake, it would warm him and do his old heart good. This made Taro sadder than ever. अब जब टैरो ने ये बात सुनी अपने पापा की कि उनको साके चाहिए, सो टैरो अपने आप को सैडर फील किया, वो सैड बन गया। पहले भी सैड था क्योंकि वो उसको ऐसे लगता था, ऐसे फील होता था कि वो अपने मम्मी पापा की डिमांड्स फुलफिल नहीं कर सकता है। बट जब उसके फादर ने साके डिमांड किया एंड ही वॉज नॉट एबल टू get a sake for him, his father, he made very sad. For the heartwarming drink called sake was very expensive. Then why Taro became sad? Because he knew that drink, that sake was very expensive. वो बहुत expensive था sake. How do I earn more money? He asked himself. फिर वो अपने आप को पूछ रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। वो अपने आप से बातें कर रहा था कि मैं अपने पुअर ओल्ड फादर की, अपने पापा की विश कैसे पूरी कर सकूँगा, उनके लिए मैं साके कहाँ से लाऊँगा। देन ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। फिर वो पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने को डिसाइड करता है। वो नक्की करता है कि अब मैं हार्ड वर्क करूँगा एंड अपने फादर के लिए, अपने पापा के लिए साके लेके आऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। फिर क्या होता है, व्हाट हैपन्स, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड। वो रोज उठता है, उससे भी जल्दी वो उठ गया एंड फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा। ही chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. सुबह से लेके नून टाइम तक उसने वुड्स चॉप किए, कट किए, बहुत हार्ड वर्क किया। देन नून टाइम हुआ तो उसे बहुत गर्मी लगी क्योंकि उसने सुबह से लेके दोपहर तक कंटिन्यूअस वो वर्क कर रहा था। दैट्स वाई ही फेल्ट वार्म हॉटनेस एंड देन ही टुक ऑफ हिज जैकेट। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। ड्यू टू हार्ड वर्क he became very dry and his face was wet with sweat. पसीने से उसका फेस जो था वो भी पूरा वेट हो चुका था, गीला हो चुका था। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. वो फिर अपने पापा के बारे में सोच रहा है कि मेरे बेचारे गरीब पापा, if only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. Here you can see that, yet tired, yet felt thirsty. उसको बहुत पानी पीना था, बहुत प्यास लगी थी। उसका जो फेस था वो पसीने से कवर हो चुका था, गीला हो चुका था। फिर भी वो रेस्ट नहीं कर रहा है। फिर भी उसने अपना काम फिर से शुरू किया, चॉप करना। क्या सोच रहा था कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और उस पैसों से वो पैसे खरीद के मैं अपने पापा के लिए साके खरीदूँगा जो उनके बॉन्स को ठंडक पहुँचाएगा। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। फिर अचानक से टैरो चॉप करना स्टॉप कर देता है। वो वुड कट कर रहा था, वो अचानक से स्टॉप कर देता है। What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? फिर अचानक से वो एक आवाज़ सुनता है एंड वो सोच रहा है कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। मे बी ये पानी की आवाज़ आ रही है। टैरो अपने आप में सोच रहा है,
टेरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टेरो को तो याद भी नहीं आ रहा था कि फॉरेस्ट के उस पार्ट से जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे कोई स्ट्रीम है, वो उस बारे में टेरो को पता भी नहीं था। ही वॉज थर्स्टी, वो उसे बहुत प्यास लगी थी। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। देन व्हाट डिड ही डू? द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथ में जो एग्स थी वो गिर जाती है, वो फेंक देता है। एंड जहाँ से, जिस डायरेक्शन से वो स्ट्रीम की आवाज़ आ रही थी, he ran in the direction of the sound. Here you can see in this picture also, Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Then Taro देख रहा है एक beautiful water hidden behind a rock. रॉक जो होते हैं, पत्थर होते हैं, स्टोन के पीछे एक स्ट्रीम था। अचानक से टेरो वो स्ट्रीम, वो वाटरफॉल देख रहा है, kneeling at a place where the water flowed quietly, और जहाँ से वो वाटरफॉल हो रहा था, पानी नीचे गिर रहा था, वहाँ पे वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। He cupped a little in his hands. Here you can see, you can read the word cupped. What is the meaning of cup? Cup means a little in his hands. Took some water in his hands. उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया and put it to his lips, और अपने लिप्स के नज़दीक उसने वो जो हैंड में पानी लिया था, पानी भरा था, वो अपने मुंह के नज़दीक लेके जाता है। Here द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन, जैसे टेरो जो है वो अपने हाथ, वो वाटरफॉल हो रहा है वहाँ उसके नीचे रख रहा है। वॉज इट वाटर और वॉज इट साके? देन जब वो वाटर टेस्ट करता है तो अचानक से उसके मुंह से ये वर्ड्स निकल आते हैं, वॉज इट वाटर? ये वाटर था कि साके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, देन ही कुडंट बिलीव, सो ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो फिर से टेस्ट कर रहा है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। एंड जितनी भी बार उसने टेस्ट किया उतनी बार उसको साके का ही टेस्ट आ रहा था, उसको वाटर का टेस्ट नहीं आ रहा था। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन I will explain you in our next session. Till then, bye everyone. Have a nice day. Take care.